Rahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel, Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will cover the final component of the cellular respiration, that is the respiratory chain, also known as the electron transport chain. At the end of this lecture, you should be able to answer the following questions, starting off with how do the products of Krebs cycle they proceed into the electron transport chain, which specific molecular factors are involved in this process. You should also be able to discuss the sequence of events that occur during this respiratory electron transport chain, and finally, as usual, we will try to find out what is the significance of this particular process. By the definition, when we talk about this respiratory chain, it's a metabolic pathway that involves the transfer or movement of the hydrogen ion from NADH and also from the FADH2 that is formed during the Krebs cycle. Okay, so they move from the different components that are found within the inner membrane of the mitochondria. ठीक है, different enzymes होते हैं, उसके ऊपर ये जो हमारे पास NADH हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स और FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से रिमूव होके they pass through the surface of the membrane and ultimately form the ATP molecules that are finally going to be reacting with the molecular oxygen that is formed at the end of this reaction. Some of the important molecular factors that we will come across in this respiratory chain are the cytochrome complexes, coenzyme Q, and then we have the molecular oxygen as well. Before jumping into the respiratory chain, I will just like to discuss where this process actually occurs. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमें पता है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उसके अलावा इनर जो मेम्ब्रेन है दैट हैज़ इट्स इनफोल्डिंग्स लाइक दिस. नोन एज द क्रिस्टाई. अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ समझनी है कि वेयर डज दिस होल प्रोसेस एक्चुअली अकर्स. तो ग्लाइकोलिसिस जो है ऑब्वियसली उसके जो पायरुवेट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स that are formed outside the mitochondria in the cytosol. तो ये जब यहाँ पे एंटर होता है somewhere in these areas the Krebs cycle basically occurs over here. ठीक है, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन जो है that occurs within the mitochondria and then there is Krebs cycle that is occurring within this area. अब क्रेब्स साइकिल के जो हमने प्रोडक्ट्स पढ़े हैं वो कौन से थे जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आते हैं. दे आर द NADH एंड देन वी हैव द FADH एज वेल. अब ये जो दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने जाना है रेस्पिरेटरी चेन. अब ये जो रेस्पिरेटरी चेन के जो मॉलिक्यूलर फैक्टर जो एंजाइम्स या रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन दिस inner membrane of the mitochondria. ठीक है, so we can show them with a different color. We'll choose the red color over here. ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली रिसेप्टर्स पड़े होते हैं. ठीक है, तो ये जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं NADH और FADH, so they give their electrons to the receptors that are or the enzymes that are present on this membrane. ठीक है, तो जब मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो पंपिंग होती है वंस अगेन ऑफ व्हाट वी कॉल द H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे एक एंजाइम या एक मॉलिक्यूलर फैक्टर से दूसरे की तरफ तो क्या होगा, एनर्जी
जो है लेवल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हाई एनर्जी लेवल से NADH से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इट मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो प्रॉपर एक प्रोसेस ऑफ केमी ऑस्मोसिस गोज अराउंड ओवर हेयर एज वेल। ठीक है, जब भी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन स्टार्ट होती है तो देयर इज़ मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले जो है आयंस दे विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ल्यूमन है उससे मैट्रिक्स में जाएंगे। द इनर पोर्शन इज नोन एज द मैट्रिक्स। और फिर लेटर ऑन क्या होता है कि H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर वंस अगेन ATP सिंथेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक है, तो प्रोसेस बाकी सारा सेम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि किस तरह से इस मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मूव एंड देयर इज़ पंपिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और क्या होता है कि जो NAD है दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द Krebs cycle, sorry the NADH, it will be oxidized, it will release its hydrogen as well as the electrons and it will transfer them to the coenzyme Q that is present on the inner membrane of the mitochondria। ठीक है, इस एनर्जी रिलीज की वजह से देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, बाकी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए थे, दे विल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन नाउ। ठीक है, देन देयर आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द FADH2 that converts into FAD, and electrons once again come from this energy molecule as well towards the coenzyme Q. Later on what is going to happen, the coenzyme Q it is going to oxidize and transfer its electron to cytochrome B, that is another receptor that is present on the inner membrane of the mitochondria। ठीक है, this cytochrome B it will then oxidize once again, and what is different that is going to happen is that this is going to release high energy, once again release of phosphate ion that will result in ATP production over here। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है that is going to continue and also there is going to be release of hydrogen ion over here। ठीक है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टिल कंटिन्यू टू मूव फ्रॉम साइटोक्रोम B to C। होता सिर्फ क्या है कि ये चूँकि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हाई एनर्जी इज़ रिलीज जिसकी वजह से अनदर ATP इज़ फॉर्म्ड ओवर हेयर। तो साइटोक्रोम C जो है ये अब आगे से ऑक्सीडाइज होगा, इट विल ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम A। ठीक है, लेटर ऑन दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम C। सारे का सारा जो प्रोसेस है दैट इज़ अकरिंग ऑन द मेम्ब्रेन। ये आप कह सकते हैं ल्यूमन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये इनर मेम्ब्रेन का जो है वो एरिया है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो फाइनली क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फाइनली शेयर्ड बाय द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटम दैट आर प्रेजेंट ओवर हेयर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है दैट इज़ ऑफ O2। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इट विल फाइनली कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ये हाई एनर्जी प्रोसेस है, सो वंस अगेन अनदर phosphate ion is released that will combine with ADP to be converted into the ATP molecule।
ठीक है। सो ये सारे का सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा होता है, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, जब भी ये हाई एनर्जी टू लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, तो सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन जो है दैट इज़ बीइंग पम्प्ड फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब H पॉजिटिव आयंस की यहाँ पे तादाद बढ़ जाएगी तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट कंसिस्ट ऑफ ATP सिंथेज, जिसके थ्रू क्या होगा, ATP सिंथेज के थ्रू ये जो H पॉजिटिव आयन में इट विल मूव फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द ल्यूमन, एंड वंस अगेन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, फॉस्फेट आयन जो है they are produced and they will combine with the ADP to form an ATP molecule, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस उसी तरह से होता है जैसे कि केमियोस्मोसिस का फिनोमेना है, जो कि हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट्स के केस में पढ़ा था। इसी तरह से एनिमल्स के केस में जो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, बल्कि उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर केमियोस्मोसिस होता है इसी तरह से। सो रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एंड देयर इज़ मूवमेंट ऑफ आयन एज वेल। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एक NADH है उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास कितने ATPs बने थे, 1 2 और 3, ठीक है। तो एक NADH की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कितने ATP बन गए, 3। और ये जो एक FADH है इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास कितने बनेंगे, 1, एंड यू हैव द 2 ओवर हियर। सो 2 ATP molecules are formed as a result of FADH oxidation. So this is how the respiratory chain phenomena it occurs within the mitochondria on the surface of the inner membrane. So this is the final chemical reaction of the process that has occurred in the electron transport chain or the respiratory electron transport chain. इस process को हम oxidative phosphorylation भी कहते हैं। Oxidative phosphorylation क्यों कहते हैं? Because there is addition of a phosphate group and there is also oxidation process that goes on. ठीक है। ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है कि ऑब्वियसली डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं मेम्ब्रेन के, दे कंटिन्यू टू ऑक्सीडाइज, लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन एज वेल, ठीक है। तो इनिशियली हमने देखा था कि NADH जो है वो दैट ब्रेक्स डाउन एंड देयर इज़ ऑल्सो मूवमेंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही होती है, कोएंजाइम Q और बाकी भी जितने हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, all of them are going under oxidation and there is also addition of phosphate group to the ADP, ठीक है। तो 3 ADPs में 3 different positions पे हमने देखा था कि phosphate ion जो है the inorganic phosphate is added. So this process, that is why it is known as oxidative phosphorylation, as there is also oxidation of different molecular factors is going on. Also the molecular oxygen that also gains electron in presence of H2 and gets converted into H2O, ठीक है। NADH की formation हो रही है and then finally we have 3 ATPs that are formed during this reaction, ठीक है। लास्ट एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इसको जैसे कि हमने बताया था कि क्रिस्टाई जो हैं दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग, उसके ऊपर ही आकर करता है, ठीक है। और आपने याद रखना है कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो कहाँ पे हो रही होती है, फ्रॉम द मैट्रिक्स। और हमने एक ल्यूमन टर्म यूज़ की थी, उसके बजाय बेटर टर्म इज़ कि ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना फोल्डिंग्स के दरमियान, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसमें और मैट्रिक्स के दरमियान जो है आयंस, H पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट होती है, ठीक है। जिसके रिजल्ट में देयर इज़ रिलीज ऑफ ATP, जो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज़ बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी।
दैट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दिस इनफोल्डिंग्स। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान जो इनफोल्डिंग है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो हैं दे मूव इनटू द मैट्रिक्स against the concentration gradient. This is the end of our lecture. Do like our video and share it with other students as well. If you have been able to understand the concept of the respiratory chain, in the comment section do ask us questions that are relevant to the topics that we have covered over here. In the comment section जो questions हैं वो आप लाजमी पूछें, and we are anxiously waiting for those, and we will obviously address all those questions. Do not forget to subscribe to our channel, click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis, as we will be discussing the total number of ATP molecules or the different energy molecules that are produced overall in the cellular respiration in our upcoming video. Thank you very much.